Okay, sir, I've started the recording. I'll make you the host again. Okay, great. Yeah, Okay, thank you. yeah. Now you can share the screen. Okay, great. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, great. So, okay. So today we'll be, discussing a bit about logistics. Okay. Now, why majorly logistics? Okay, because one common thing that you always hear about in the market is the common things, right? Do marketing. There's a lot of talks about digital marketing these days. People are talking about guerrilla marketing, billboard marketing. Social media has taken up. Other thing what you hear about is finance, right? Common things. What people usually take up, let's get into finance. Let's do something like CFA. Let's do something like CA. We'll get a good job. Uh, Another area that you probably hear about is HR, right? Many people are focused on that. And typically, even if you look at in HR, people are more into like, I want to get into recruiting. मेरे को recruit करने का. Okay, I want to hire people for the organization. I want to get into that area of HR. And the fourth area, what probably people mostly look at, typically, you see most of the engineers getting into this IT sector, right? We have big players in the IT sector as well. You see something like TCS, Wipro, Infosys, Accenture. Okay, big players into the IT sector as well. And we see a lot of software engineers into the IT sector as well. In all of this, one area which is, probably overlooked at this point of time, okay, but probably becoming really important, okay, with the scenario that we are seeing, with the things, the way things are picking up, is the logistics sector, right? Typically in today's time, why I'm typically talking about the time right now, you see everything is going online, everything, even education is going online. Aaj education bhi online chala gaya. Okay, what you're doing right now is also online. Okay, you're gaining things online. Forget about this. You want any fruits, vegetables, that is also online. You have Grofers, you have Big Basket, even Big Bazaar has started, DMart has started. You want to send money to someone, you want to receive money from someone, that also can be done. You have something like Google Pay, Phone Pay, Paytm. What I'm saying is, probably 5 years or 6 years before, this revolution had not taken place. We did not have all these things in place. Yes, it was slowly in the making. We already had Amazon and Flipkart जिन्होंने market capture कर लिया था. Okay, they had already penetrated into the market, but we never expected कि हमें फल, fruit, सब्जी ये सारा चीज भी online मिलेगा. Nobody thought, but yes, that revolution has come about. Okay, now one very important thing is, all these things are online. Things are available online. You can go online, you can look at the products, you can select the products, you can buy the products. ये आपके साइड से हो गया, ये कंपनी के साइड से भी हो गया कि हमने बस डिस्प्ले कर लिया था, हमारे पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल था. इट डजंट स्टॉप हियर, राइट? क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो, आप खुद बाय करके आते हो. Okay, but when you go online, okay, you're selecting the products. Who is delivering to you? How is that link, you know, वो link कैसे बनता है? Okay, how are you bridging that link? Okay, that is where logistics come in. Okay, and today there are so many players. You see Amazon, Flipkart, Myntra, Grofers, Big Basket, any of these products which, or any of these brands which are online, one major area that they are looking at is logistics. Okay, अभी आप बोलोगे सर आप लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हो, मतलब ये तो वैसा ही हो गया, मतलब मैं मेजरली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही ध्यान दूंगा, मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है प्रोडक्ट्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक. नो, इट्स नॉट ओनली दैट. yes, it is a part of logistics. It's one of the major part of logistics कि आप ट्रांसपोर्ट करते हो प्रोडक्ट्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू लुक एट इन लॉजिस्टिक्स. आपको ये नहीं करना है कि सर मैंने लॉजिस्टिक्स ले लिया तो क्या मैं सिर्फ ट्रक चलाऊंगा. नहीं, वैसा नहीं होता. Okay, there are a lot of other things that come into logistics, and that is what I wanted to touch upon, to show you how the economy is growing in terms of logistics. Okay, even when virus was at a very high, was at a peak, probably 2020 के early 2020 में एकदम high के ऊपर था. Okay, there were a lot of people who were affected, and that is when we created the vaccines.
ओके, वैक्सीन बन रहे थे पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगेन दैट इज वेयर द लॉजिस्टिक सेक्टर केम इन। ओके, वो ट्रक्स चाहिए थे, उतना लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क चाहिए था, उतना डिस्ट्रीब्यूशन रीच चाहिए था। Okay, Tata provided so many trucks for distribution purposes. Okay, all those things come in, वो सारा factor आपको consider करना पड़ेगा, and this is the period when we saw a lot of hike in the logistics sector. Okay, and how it is revolutionizing is what I'm discussing with you right now. Okay, now see, if I just go ahead and give you a little idea about how the market is performing in terms of logistics. Okay, just have a look how the market is picking up. Okay, post COVID-19, after COVID-19, the global logistics market size is projected to grow from 2734 billion US dollars in 2020 to 3215 billion dollars, which is almost 18% growth. इतना तो आपके म्यूचुअल फंड में भी नहीं आता अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है, कितने साल रुकने के बाद भी। ओके, बट दिस एरिया इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 18%। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉस, यू सी इन एरियाज ऑफ समथिंग लाइक मार्केटिंग, आप मार्केटिंग में जाते हो, इफ यू पिक अप समथिंग लाइक मार्केटिंग, थोड़े एरियाज है मार्केटिंग के जो स्टैग्नेंट हो गए, अभी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, आजकल के बच्चे जो हु आर पिकिंग अप बैचलर्स की डिग्री, वो इमीडिएटली ज्वाइन करते हैं कोई भी मार्केटिंग के कंपनी के या किधर भी, वो लोग को डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग का एक प्रोफाइल दे देते हैं। देयर इज नथिंग मोर टू लर्न। ये बच्चे यार 11th स्टैंडर्ड से वो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ मार्केटिंग करना है। देयर इज नो एडिशनल लर्निंग, देयर इज नो एडिशनल थिंग जो आप लेके आने वाले हो उस मार्केटिंग के अंदर, वही करना है आपको। बट इन दिस एरिया दिस इज स्टिल बूमिंग। हम ना थोड़ा हेजिटेंट है, हम अपने बच्चे को भी नहीं बोलेंगे यार लॉजिस्टिक सेक्टर नहीं, छोड़ दे, मार्केटिंग कर, फाइनेंस कर। ओके, आपने कितनी बार, इफ यू आर अ पेरेंट, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन अहेड एंड टोल्ड योर चिल्ड्रन कि जाओ ओके लॉजिस्टिक सेक्टर में? नहीं, क्योंकि हमें पहली बात तो हमें उतना खुद को नॉलेज नहीं है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकेंडली, हमें नहीं चाहिए यार, हमारे दिमाग में वही है कि भाई ट्रक चलाना पड़ेगा, वो नहीं करना है। ओके, बट दिस एरिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट ऑफ 18%। ओके, द अदर थिंग व्हाट वी आर लुकिंग एट is the Indian logistics market. India का सिर्फ Indian logistics market is growing almost at 10.5, which is almost very near to 11%. Okay, which is still a very good percentage. Indian logistics sector provides livelihood to almost 22 million people. 1 million is 10 lakhs, right? Almost 22 million. आप देखोगे तो ये सेक्टर में ना ज्यादा डोमिनेशन नहीं है, ये सेक्टर में ना बहुत लोग अभी इन्वॉल्व नहीं है, और ज्यादातर आपको जो दिख रहे हैं वो आपके आई साइट पे आपको जो दिख रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो डिलीवरी बॉय आपको दिख रहे हैं, आपको वही लग रहे हैं कि यही है लॉजिस्टिक्स में। जैसे मिंत्रा का डिलीवरी बॉय आ गया, अमेजोन से डिलीवरी बॉय, भाई यही लॉजिस्टिक्स है। आपको सिर्फ फ्रॉम द आउटसाइड आपको सिर्फ यही दिख रहा है, राइट? बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। 22 मिलियन इज हार्डली एनीथिंग हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है? सो अगर आप इस सेक्टर में जा रहे हो, इफ यू आर पिकिंग अप दिस सेक्टर, इफ यू आर पेनिट्रेटिंग इनटू दिस एरिया, स्कोप है। देखो, एक चीज को देखने के दो दो तरीके होते हैं। एक चीज आप ऐसे देख लो कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये चलेगा ही नहीं। दूसरा ऐसा है कि आप ऐसे देखो कि यार यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पे मैं घुसूंगा तो मैं नाम बना दूंगा। ठीक है, देयर आर टू वेज टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, दैट इज व्हाट लॉजिस्टिक्स इज प्रेजेंटिंग टू यू। Next is only 10 to 15% of the 215 billion Indian logistics market is owned by organized players. तो दो चीजें होती है, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओगे तो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर होगा, एक अनऑर्गेनाइज प्लेयर होगा। जैसे रिटेल सेक्टर ले लो, रिटेल सेक्टर में ऑर्गेनाइज कौन हो गया? जैसे बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, आपके जो नॉर्मल किराना स्टोर होते हैं, ये सारा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये लोग के पास लाइसेंस है, ये लोग के पास बिल्डिंग है, ये लोग अपना दुकान चला सकते हैं। अनऑर्गेनाइज कौन हो गया रिटेल सेक्टर में? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ओके, जो हाथ गाड़ी लेके आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ऐसे नॉर्मली, या वेंडर्स जो होते हैं जो कई बार आपको चर्च गेट फोर्ट फाउंटेन के साइड के ऊपर जो रास्ते पे दिखेंगे, चत्तर बिछा के वो प्रोडक्ट्स, दो आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो आप कोई भी एरिया में चले जाओगे, वहां पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होगा। अल्कोहल में भी है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, है ना? अल्कोहल भी आप देखोगे, नोन कंपनीज, आप बोलोगे मैं दमन से लेके आया, तो बोलेगा भाई ये तो डुप्लीकेट माल है, ठीक है ना? वो हमेशा होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कितना है? सिर्फ 10 से 15%। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में स्कोप है अभी भी, आप घुसो इस एरिया के अंदर, बहुत मार्केट है इन गिवन टाइम। सी, एंड इंडिया का परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज 35। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रैंक मुझे
2016 का मिला क्योंकि उसके बाद अपग्रेड नहीं हुआ है। ओके 2016 में हम लोग 35 रैंक पे थे। ओके इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस दिस हैज डेफिनेटली गॉन अप, और वायरस के बाद तो डेफिनेटली और ऊपर गया है, क्योंकि वायरस का जो वैक्सीन था वो यहाँ पे बना, हमने बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये रैंक डेफिनेटली ऊपर गया है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। जैसे इंडिया इज नोन फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ओके इन few years down the line India will known for its logistics sector as well. Okay, so this is just a brief about how the market is performing. आप कहाँ पे एरिया है लॉजिस्टिक्स, how you can look at this area and how you can penetrate it. Okay, there's a lot of scope that we are looking at, right? Let's go ahead, let's try and understand लॉजिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली। ओके आपके दिमाग में ये है कि भाई मैं जब लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो ये है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस ये ट्रांसपोर्टेशन है, पर दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है यहाँ पे। कौन सी है वो दो एक्स्ट्रा चीजें? मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है, दो चीजें ध्यान में रख के, एक मेरे को खर्चा कम करना है, ओके इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, और दूसरा मेरे को टाइम बचाना है, इट हैज टू बी टाइम एफिशिएंट। ये दो चीजें मैं ट्रांसपोर्टेशन में कर ली तो मेरा लॉजिस्टिक्स का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखो ट्रेन भी तो करता है, ट्रेन भी तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, पर भाई लोकल ट्रेन कितनी बार लेट होती है? ठीक है, मैं उबर ओला से भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता हूँ, पर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो अपना प्राइस मारते हैं। ठीक है, मैं जब लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे दो चीजें ध्यान में रखनी है, मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सामान लेके जाना है, एंड टू थिंग्स, इट हैज टू बी टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये दो चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, दैट्स मेजरली व्हाट लॉजिस्टिक्स इज ऑल अबाउट, हाउ आई ट्रांसपोर्ट दोस प्रोडक्ट्स। Okay, now let's get into the important part of it. Let's get into something which is known as the pillars of logistics. Okay, तो जो आपको सिर्फ लगता था कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, तो नहीं, और कौन सी चीजें हैं जो आपके लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में इंक्लूड होती है। Let's look at that. Okay, few important pillars. Let's try and touch upon those. First, order processing. Okay, so यहाँ पे एक important concept I would like to touch upon. There is something known as movement consolidation. Okay, क्या होता है? What is order processing? I'll tell you. Logistics में there is one terminology जिसे कहा जाता है lead time. LEAD, lead time. Lead time क्या बोलता है? मैंने कब ऑर्डर प्लेस किया और मुझे कब वो ऑर्डर मिला, ये दोनों के बीच में कितना टाइम था? How much was the time between me placing the order and me receiving the order? इसे कहते हैं lead time. Okay? अब एक एग्जांपल लेते हैं, समथिंग लाइक Amazon. ओके अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपको इमीडिएटली अगले दिन प्रोडक्ट मिल जाएगा, पर आप प्राइम मेंबर नहीं हो, आपको 200 रुपये बचाने हैं, ठीक है, और आप रुकते हो कि भाई अमेजोन जब प्रोडक्ट भेजेगा मैं तभी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अमेजोन क्या करता है, वो हमेशा आपको बोलता है कि प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू यू इन 4 to 5 days। ओके वो ये 4 to 5 days क्यों बोलता है? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो पहला रीजन तो ये होगा कि शायद उसका वेयरहाउस कहीं पे है, उसको वहां से प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, ठीक है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट के अंदर टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो वो एक रीजन हो सकता है। ये यूजुअली ना एवरीडे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मेरा वेयरहाउस बैंगलोर में है और मेरा डिलीवरी मुंबई में भी है ना, तो बैंगलोर के वेयरहाउस से मुंबई के वेयरहाउस में एक दिन में आ जाएगा प्रोडक्ट। फिर भी ये 4-5 दिन क्यों बोलता है अमेजोन? तो इसका रीजन ये है, मान लो कि आपके एरिया में से आपने ऑर्डर प्लेस किया मंडे पे, ठीक है, अमेजोन बोलेगा बॉस तेरे को प्रोडक्ट मिलेगा फ्राइडे। मैं बोलता हूँ भाई ठीक है मैं रुकता हूँ फ्राइडे तक। ट्यूसडे पे आपके ही एरिया में से, आजू बाजू में से किसी और ने अमेजोन से ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो अमेजोन उसको भी बोलता है भाई तेरे को रुकना पड़ेगा, तेरा भी ऑर्डर फ्राइडे पे आएगा। वेडनेसडे फिर से पूरे एरिया में से कोई ऑर्डर प्लेस करता है आजू बाजू के एरिया में से, अमेजोन उसको भी बोलता है कि भाई तेरे को भी रुकना पड़ेगा, फ्राइडे पे तेरा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके थर्सडे भी कोई ऑर्डर भी प्लेस करता है, थर्सडे वाले को बोलता है बॉस योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टुमारो। अब अमेजोन ने ये क्यों किया? आप देखो आपके एरिया में से हर दिन कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, तो अमेजोन क्या है ना, पूरा ट्रक चला के एक बंदे का प्रोडक्ट डिलीवर करने को हर रोज आने वाला नहीं है। अमेजोन कैन नॉट डू दैट। तो क्या करता है, ऑर्डर को पूरा कंसोलिडेट कर लेता है। वो देखता है कि बॉस पूरे एरिया में से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 बंदों ने और ऑर्डर प्लेस किया है, तो मैं चारों ऑर्डर को एक ही ट्रक में डालूंगा और एक ही टाइम में मैं वो उस एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मूवमेंट कंसोलिडेशन।
ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट कंसोलिडेशन करना। इससे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, आपके जो डिलीवरी वाला था उसका सैलरी बच गया आपके लिए, उनका टाइम बच गया। ओके, ऑल दीज फैक्टर्स आर सेव्ड। दिस इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, दिस इज मूवमेंट कंसोलिडेशन। ओके, बट ऑर्डर प्रोसेसिंग के टाइम पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन के पास, तो अमेजोन बोला कि 4-5 दिन में डिलीवर हो जाएगा। अगली बार मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मेरे को बोलता है कि 9-10 दिन लगेंगे। उसके बाद में एक और बार प्लेस करता हूँ ऑर्डर, तो बोलेगा यू विल रिसीव द ऑर्डर इन नेक्स्ट 2 डेज। इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, बी स्टैंडर्ड। और मैं ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कभी भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मुझे 5 से 1 हफ्ते तक का टाइम दिखाता है, 5 दिन से 1 हफ्ते तक। ओके, इट विल बी डिलीवर्ड इन 5 to 7 डेज, और उतने दिन में आ भी जाता है। और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये फ्लक्चुएशन बहुत नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन बहुत होगा ना तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा, भाई आज आने वाला है, कल आने वाला है, 10 दिन के बाद आने वाला है मेरा प्रोडक्ट। मैं क्या रोज ऐसा खिड़की पे बैठा रहूंगा, आ जाएगा प्रोडक्ट? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सो दैट ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट एरिया इज ऑर्डर फ्लक्चुएशन, वन ऑर्डर प्रोसेसिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया लॉजिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, जब मैं इन्वेंट्री की बात करता हूँ तभी 3 चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। ठीक है, 3 टाइप की इन्वेंट्री हमेशा होगी आपके पास। एक होगा रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, जो स्पेयर पार्ट्स वो सब, जो असेंबलीज होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब। दूसरा होगा वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे गाड़ी बनानी है तो मैं पूरी गाड़ी एक दिन में नहीं बना सकता, तो शायद थोड़ी सी गाड़ी बन गई है, थोड़ी गाड़ी मैं कल बनाऊंगा, तो इस इन्वेंट्री को मैं बोलूंगा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। काम चालू है, 2 दिन और लगेंगे गाड़ी बनाने के। तीसरा इन्वेंट्री होगा अपने पास फिनिश गुड्स। ये गुड्स बन गया है पर मेरे वेयरहाउस में रखा है जब तक इसका डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, 3 टाइप का इन्वेंट्री। नाउ ये बोल रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलता है कि भाई तेरे को ना ओवर स्टॉकिंग करना है, ना अंडर स्टॉकिंग करना है। 2 टाइप का स्टॉकिंग होगा। ओके, यू शुड नॉट ओवर स्टॉक, यू शुड नॉट अंडर स्टॉक। ओके, ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी कि इससे डिसएडवांटेज क्या है। देखो, अगर आपका ओवर स्टॉकिंग है, मतलब तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास डिमांड है 100 गाड़ी बनाने के लिए। ठीक है, 100 गाड़ी बनानी है तो आपको टायर कितने चाहिए? 500। 4 गाड़ी को लगेंगे और एक एक्स्ट्रा स्टेपनी, बराबर। तो मेरे को 500 गाड़ी के टायर्स चाहिए, 100 का डिमांड है, 500 टायर चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल सीएट को कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 550 टायर चाहिए। सेफ साइड पे 50 टायर और लाके रखता हूँ, कोई टायर में पंचर निकला, किसी का रिम नहीं है, किसी में वाल्व नहीं है, और 50 टायर सेफ साइड पे एक्स्ट्रा मंगवा के रखता हूँ। तो मैं 550 ऑर्डर करता हूँ, ये परफेक्ट ऑर्डरिंग हो गया। 500 टायर चाहिए और मैं 1000 टायर का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो 500 टायर का खर्चा वेस्ट हो गया ना। डिमांड तो सिर्फ 100 गाड़ी का है, 100 गाड़ी को 500 टायर चाहिए, बाकी के 500 टायर का क्या करूंगा मैं? सर पे लेके घूमू? नहीं ना। तो क्या होगा, ये 500 टायर वेस्ट। वेस्ट मतलब आप यूज करोगे जब भी डिमांड होगा गाड़ी का, तभी ये टायर यूज करोगे, पर अभी के लिए तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया ना। मान लो एक टायर कॉस्ट क्लोज टू अराउंड 15-20,000 रुपीज। वो एक एक टायर 500 टायर का मतलब आपका कितना कैपिटल ब्लॉक हो गया। मतलब जब तक कोई गाड़ियां नहीं बन रही है और 100 गाड़ियां नहीं बन रही, तब तक आपका कैपिटल रुक गया, आपका कैपिटल ब्लॉक। क्योंकि आपको तो सीएट को पैसे देने ही पड़ेंगे 1000 टायर के। 500 टायर आपने यूज किए, 500 टायर पड़े हुए हैं। तो ओवर स्टॉकिंग का एक डिसएडवांटेज है कि आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा एरिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइम पे मुझे देखना है कि अंडर स्टॉकिंग नहीं करना है। अंडर स्टॉकिंग मतलब जितना डिमांड है मार्केट में उससे कम सप्लाई नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड जैसे 100 गाड़ी का है, मेरे को 500 टायर चाहिए और मेरे पास मान लो 350 टायर है, फंस गया। मैं डिमांड के हिसाब से सप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा उतनी गाड़ियां मार्केट। 350 टायर मतलब मेरी कितनी गाड़ियां बनेगी? 70। 30 गाड़ी का लॉस। 30 गाड़ी नहीं बना सकूंगा, वो मार्केट में नहीं पहुंचेगी, कस्टमर कोई कॉम्पिटिटर की गाड़ी लेके निकल जाएगा। सिंपल। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ना तो अंडर स्टॉकिंग करना है, ना तो ओवर स्टॉकिंग करना है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स है। ओके, वन ऑफ द मेजर एरियाज इन लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूल्स है इसके लिए।
ओके एक कॉन्सेप्ट भी है. ओके इफ आई वुड हैव हैड द टाइम तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता. इट इज अ कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है EOQ. ओके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ओके विच अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी के आपका जब इन्वेंटरी जस्ट ड्रॉप होने वाला है तभी मैं नेक्स्ट लॉट ऑर्डर करता हूँ रॉ मटेरियल्स का. ओके दैट इज एन EOQ कॉन्सेप्ट. और जो इन्वेंटरी आपके वेयरहाउस में होती है आपको उसको क्लासिफाई भी करना पड़ेगा. उस क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग टाइप्स हैं. आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस टाइप्स बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए क्या चीजें आती है इन्वेंटरी मैनेजमेंट में. तो दिस इज हाउ टू लुक एट इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ओके let's look at the next thing. Let's look at the next one. Next pillar is transportation. Very simple. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करने वाले हो. कई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है. एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पाइपलाइन, बहुत बहुत अवेलेबल है. ओके दूसरा चीज आपको कंसिडर क्या करना है ट्रांसपोर्टेशन का मोड सिलेक्ट करने के टाइम पे कि मेरे पास कितना टाइम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और मैं कितना खर्चा कर सकता हूं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. कितना टाइम है. अगर मेरे को प्रोडक्ट्स इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इमीडिएटली पहुंचाना है, तो शायद मैं वाटरवेज नहीं यूज करूंगा क्योंकि वाटरवेज इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. एकदम स्लो जाता है. अगर आपके कोई फ्रेंड्स अगर आपको पता है जो मर्चेंट नेवी में या कहीं पे है तो आपको पता होगा वो शायद पूरे साल में या 6 या 7 महीने शिप पे ही होते हैं. ओके क्योंकि शिप बहुत स्लो जाता है. अगर उसको कहीं पे जाके वापस रिटर्न आना है उसको बहुत टाइम लगता है. ओके पर अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं वाटरवेज सिलेक्ट करूंगा. अगर मुझे इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है तो शायद मैं एयरलाइंस एयरवेज तो मैं एयरवेज सिलेक्ट करूंगा. अभी इसके साथ मेरे को एक और चीज कंसिडर करनी है जो है खर्चा. मैं कितना विलिंग हूँ स्पेंड करने के लिए, कितना पैसा मैं स्पेंड कर सकता हूँ. ओके वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड. चीप एकदम चीप है. ओके एग्जांपल देता हूँ. आप मुंबई से अलीबाग जाते हो कभी फॉर एग्जांपल आप फेरी लेते हो. फेरी का खर्चा आपको 100-150 रुपए में आप फेरी से चले जाते हो अलीबाग. ओके आप रोडवेज से जाओगे आपको पेट्रोल का 1 वे का खर्चा लगेगा 1,500-2,000 रुपए. दिस इज द डिफरेंस. ओके दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट यू हैव. ओके सो आपको सिलेक्ट करना है मुझे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करना है बेसिस मेरे पास कितना टाइम है और बेसिस के मैं कितना खर्चा करने वाला. ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पिलर वेयरहाउस. वेयरहाउस आप सबको पता ही होगा जिसे आप कहते हो गोडाउन. राइट गोडाउन की बात जब आप करते हो. अब वेयरहाउस की भी जब आप बात करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. ओके क्योंकि जो वेयरहाउसेस आप देखते हो ये बहुत ह्यूज होते हैं. बहुत ठीक है अपना 500-600 स्क्वायर फीट का घर नहीं है मुंबई का. ठीक है ना. जब मैं वेयरहाउस की बात करता हूँ तो ये मिनिमम टू मिनिमम आपको 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया इतना बड़ा वेयरहाउस दिखेगा. अमेजॉन अमेजॉन अपने वेयरहाउस को फुलफिलमेंट सेंटर बोलता है. अमेजॉन का सबसे छोटा वेयरहाउस इज 1 मिलियन स्क्वायर फीट. 10 लाख स्क्वायर फीट का. नाउ अमेजॉन स्टॉक्स A to Z सारे प्रोडक्ट्स आप कुछ भी मांग लो अमेजॉन के पास से वो आपको डिलीवर करके देगा. टूथब्रश मिलेगा, ट्यूबलाइट मिलेगा, एयर कंडीशनर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा. ठीक है पर आप स्टॉक कैसे करते हो वेयरहाउस में. आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है मुझको वेयरहाउस में. इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट क्योंकि उसका ट्रैक रखना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इसके लिए वेयरहाउस के अंदर आपको पूरा प्रॉपरली डिजाइन बनाना पड़ेगा. एक लेआउट बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज मुझे कहाँ पे रखनी है. जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ आपको. अमेजॉन के किसी भी वेयरहाउस में एट एनी गिवन टाइम देयर आर क्लोज टू 17 लाख प्रोडक्ट्स. 17 लाख प्रोडक्ट होते हैं उसके पास एक वेयरहाउस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और Sir, I have a question. यस
Yeah, so sir, why did Amazon like carry such a big warehouse? Like there is no need of warehouse ना, because उनके सारे products तो अलग अलग vendors के पास already होते हैं ना. Right. Right. So why do they basically have a warehouse? के मतलब देखो vendor के पास से तो what they stock is only fast moving products. तो देखो Amazon ना कभी भी फर्नीचर स्टॉक करके नहीं रखेगा. फर्नीचर इज दैट वन ऑफ आइटम जो गई तो गई. ठीक है ना. किसी कोई कोई Amazon पे आके ना इतना फर्नीचर नहीं देखता. Amazon पे सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? दो चीजें. एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है अपैरल्स एंड शूज. ये सेक्टर. इलेक्ट्रॉनिक देखो इलेक्ट्रॉनिक उसको स्टॉक करना ही पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फास्ट मूविंग है और Amazon पे आप देख लो कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसका प्राइस लो होता है. और अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक बाय करना है तो वो हमेशा Amazon के पास जाके वहीं से बाय करता है. ओके. नाउअडेज देयर आर टू अदर प्लेयर्स, फ्लिपकार्ट एंड टाटा क्लिक. ये दो भी बहुत मार्केट के अंदर है. बट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम Amazon के पास वो इलेक्ट्रॉनिक होना ही चाहिए. अगर उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आप जैसे बताया कि उसके पास वेंडर तो ऑलरेडी है. वो सैमसंग के पास डायरेक्टली जाके बोल सकता है कि बॉस एसी का ऑर्डर है तो एसी दे दे. पर वो करने में टाइम लगेगा. अगर मेरे पास वेयरहाउस पे डायरेक्टली है मैं मेरे वेयरहाउस से इमीडिएटली डिस्पैच कर लूंगा. पर जो प्रोडक्ट्स इमीडिएटली बिक नहीं रहे, जैसे मान लो Amazon कर्टन्स भी रखता है. कर्टन्स पर्दे. पर्दे भी है उसके पास. ओके. आई डोंट नो वो सब कुछ स्टॉक करता है यार. ओके. सो Amazon के पास पर्दे भी है. अब वो हाउ मेनी ऑफ अस विल गो ऑन Amazon एंड बाय कर्टन्स? बहुत कम. ठीक है ना. कर्टन ऐसी चीज आप शायद मार्केट में जाके डायरेक्टली बाय करके लेके आओगे. बट अब कर्टन जैसी चीज है ये स्टॉक नहीं करेगा. ओके. वो बोलेगा यार जब भी ऑर्डर आएगा मैं वेंडर के पास से जाऊंगा उठाऊंगा वहां से और डिलीवर कर दूंगा कस्टमर को. ये स्टॉक करने की जरूरत नहीं. ओके. सो जो इतना बड़ा वेयरहाउस है दिस विल ओनली स्टॉक दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर मूविंग वेरी फास्ट इन द मार्केट. वो लोग का एल्गोरिथम चलता है बैकएंड के ऊपर. ओके. Amazon हैज अ वेरी गुड आईटी सिस्टम. उसके एल्गोरिथम से उसको पता चल जाएगा कि बार बार पब्लिक Amazon के पोर्टल पे आके कौन सी चीजें देखती है, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बिक रही है मेरे Amazon के वेबसाइट से. तो मैं वही प्रोडक्ट स्टॉक करता हूँ ना यार. ठीक है. तो जैसे ही ऑर्डर आया मैं इमीडिएटली मेरे वेयरहाउस से डिस्पैच कर दूंगा. मैं चांस ही नहीं दूंगा कस्टमर को फ्लिपकार्ट पे जाने के लिए या टाटा क्लिक पे जाने के लिए. नो नीड. इट विल बी डिस्पैच टू यू टुमारो इटसेल्फ डायरेक्टली. हो गया. Okay. So that is the reason why. Okay, that is the reason why they have such a big warehouse, something like Amazon. Okay, so the stocking is only of the products which are moving very fast. Okay, so just coming back to what I was saying, Amazon at any point of time they have close to 70 lakh products, 17 lakh any warehouse. और उसके पास हर रोज दिन के 2 लाख नए प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है. तो अभी कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है? इतने सारे प्रोडक्ट्स में से किसी ने फॉर एग्जांपल सायन. ओके. मुंबई के सायन एरिया में से किसी एक बिल्डिंग में से किसी एक बंदे ने मान लो कि प्यूमा का बैट मंगवाया. ठीक है. बैट भी बेचते वो लोग Amazon के पोर्टल पे. बैट मंगवाया. अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स में से तो कहाँ पे ढूंढूं? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं वेयरहाउस के अंदर. जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन, ये स्पोर्ट्स वेयर का सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ अपैरल्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ जूते होंगे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी सेक्शन बना देता हूँ मैं. ये वॉशिंग मशीन का सेक्शन, ये टीवी का सेक्शन, ये एयर कंडीशनर का सेक्शन, ये रेफ्रिजरेटर. क्योंकि ये सेक्शंस के अंदर भी बाद में ब्रांड्स आते हैं. राइट. टीवी के अंदर इतने सारे ब्रांड्स है. सोनी, सैमसंग, TCL. तो इतने सारे ब्रांड्स. वॉशिंग मशीन में भी आपके पास ब्रांड्स है. ओके. अगेन टीवी के अंदर आप देखते हो तो उसके फीचर्स अलग अलग है. कोई QLED है. राइट. कोई नॉर्मल LED है, VLED है. सो आप कैसे स्टॉक करते हो? क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट्स मैंने स्टॉक किया. कभी किसने कौन सा प्रोडक्ट मंगवाया है ये मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्विकली. इतने बड़े वेयर हाउस में से उसका पूरा डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है. आई विल लुक इन दैट सिस्टम एंड आई विल फिगर आउट के बॉस ओके ये टीवी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. ओके. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वेयर हाउस को हैंडल करते हो. ओके. सो अगर कोई बोलता है कि यार मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ तो यार ये इतना आसान नहीं है जितना आपको बाहर से लगता है. अच्छा मतलब गोडाउन संभालता है तू? नहीं भाई. गोडाउन संभाल बहुत ज्यादा होता है. ओके. कौन से आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो उसके अंदर,
ओके आपका डिजाइन, आपका लेआउट, आपका स्ट्रक्चर कैसा है वेयरहाउस का, आपको कितने फ्लोर्स रखने हैं, आपको फ्लोर्स चाहिए भी या नहीं चाहिए, कितना एरिया चाहिए, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंज्यूम कर रहे हो, आप अंदर पैसे कैसे बचा रहे हो, आपको वेयरहाउस का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा प्रोडक्ट स्टॉक कर रहे हो तो ऑल दोस थिंग्स विल कम अंडर वेयरहाउस. Okay, yeah. Hardik, can I log out? And I guess the time is running out. Yeah, it's like 2 minutes. We have 2 more minutes. Yeah, So can you conclude, sir, or you want to extend? And we'll extend the session. No worries. yeah. I just need around 10-15 minutes more. So can we Okay. log out and log in again? Yeah, sure. We'll do that. Okay. So Yeah. I'll just log out and Yeah, sure. okay. Great.